Good morning, students. Today we are going to study chapter 5, the fundamental unit of life. It means cell. And I am Thakur sir. And in previous class you already studied this chapter with me, and I hope in class 9th it is very simple chapter for you for your understanding. I have many terms we are going to discuss in this chapter one by one. It become very easy. It become very easy for your understanding. So let me start this chapter. We are going to discuss many terms in this chapter. You can see like we are going to discuss the topic in this chapter. You can see here the introduction of cell. Okay. Second topic is the discovery of cell theory, prokaryotic and eukaryotic cell shape and size we are going to discuss, cell membrane and cell wall we are going to study, and these all terms you already study in class 8th. So it's very simple for you in class 9th. And you can see another topics are cell organelles and their function. ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. सेल प्लेस्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. और ये सारे टॉपिक मैंने आपको 8th क्लास में डीपली पढ़ाया है. आइए देखते हैं इस क्लास 9th में, और इसमें और हम लोग थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे. ओके. तो ये सारे टॉपिक हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. तो प्लीज़ स्टडी, प्लीज़ watch this video carefully and note all the terms in your copy. Okay, students. So first we are going to discuss the topic. You can see here. Students, we all know that our body, the body of all organisms, okay, let it be माइक्रोस्कोपिक हो या माइक्रोस्कोपिक हो. आगे हम माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक बॉडी. ओके. बट body of all is made up of teeny units called cell. I hope you understand. Okay. Cell, that's why cell is the smallest functional and structural unit of life, है ना. तो सेल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज सभी बॉडी जो है वो किस चीज़ से बना है, सेल से बनी है सभी बॉडी. ओके. और सेल हमारा सबसे टीनी यूनिट है जिससे मिल करके सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हुई है. ठीक है. तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल है क्या आखिर, है ना. तो देखें, वी कैन से दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. व्हाई? यू नो ऑलरेडी, because all living body
made up of with cell. Am I right or not? You all are very intelligent and you study well with me in your previous class, 8th class, and I hope you understood. I hope you understood this definition. If there is any question that what do you mean by cell, so you can say cell is the structural and functional unit of living organism. Okay, so you can see here there are different organ system in our body. Okay, cell, you know, cell is the tiny unit and group of cell called tissue. You know, group of cell called tissue, and group of tissue make organ, है ना, group of tissue make organ, and group of organ make organ system, and then finally organ system perform the different activity for our life. Okay, so now you can see here all cell have three basic characteristics. Okay, you can see here the visual of cell. They contain plasma membrane. Plasma membrane, you know, made up of lipid and protein, है ना. हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन, इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. दे कंटेन जीन्स, है ना. सेल जो है ये जीन को भी कंटेन करता है. जेनेटिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए. हम लोग डीएनए भी पढ़ेंगे, आरएनए भी पढ़ेंगे. इट्स ओके. कंटेनिंग जीन्स इज प्रेजेंट. ओके, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ऑल सेल हैज थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. दे कंटेन मेटाबॉलिक मशीनरी. दे कंटेन मेटाबॉलिक मशीनरी. मेटाबॉलिक मतलब क्या होता है ना. मेटाबॉलिक मतलब है ना, जैसे कि तोड़ना, है ना, जिसको ब्रेक डाउन करना या उसको ज्वाइन करना. दिस फंक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिक फंक्शन. तो आवर सेल ऑल्सो, है ना, contains the metabolic machinery. Cytoplasm is present which contains organelles like mitochondria. Okay, so cytoplasm contains not only mitochondria, we are going to discuss each and every organelles in this chapter, you know. Okay, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और वन बाय वन हर टर्म को आप ध्यान से स्टडी करेंगे और अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे. ठीक है, ये सब आपके लिए मैंने लाया है स्पेशली. तो आगे देखते हैं. वी हैव बेसिकली टू टाइप ऑफ सेल, है ना. वी हैव categorize the cell broadly into two types, prokaryotic cell and eukaryotic cell. You know, prokaryotic cell and eukaryotic cell. This is the figure of prokaryotic cell. You can see inside the cell nucleus, and this is eukaryotic cell. You can see also. So we are going to discuss prokaryotic and eukaryotic deeply. Okay, you can see the figure. You can also understand the differences between prokaryotic and eukaryotic. Okay, so now we are going to discuss the cell history
you know, you already study in class 8 the discovery of cell, है ना. In 1665, Robert Hooke examined the thin slice of cork through self-designed microscope. एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, इनका नाम था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के माध्यम से एक फर्स्ट टाइम मतलब किसी प्लांट के डेड सेल को उन्होंने देखा था. ठीक है, तो देखा था तो कैसे दिखा उनको. इट लुक्स लाइक हनीकॉम्ब, यू कैन सी हियर. ऐसे ही हनीकॉम्ब होता है ना. ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट. मैनी लिटिल कंपार्टमेंट मतलब क्या होता है, देखिए इसमें एक सब में क्या है, एक छोटा छोटा, देखिए कंपार्टमेंट मीन्स एक रूम हो गया है ना. इसमें मैनी लिटिल कंपार्टमेंट यानी छोटे 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 क्या है, एक ब्लॉक बना हुआ है ना. इसी को उन्होंने क्या कहा, ए लिटिल रूम. उस कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने कहा कि क्या है, एक लिटिल रूम है ना. तो लास्ट में आप देखेंगे कि उन्होंने कहा बाद में कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल. ओके, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो ये तो रॉबर्ट हुक ने एग्जामिन किया फर्स्ट टाइम 1665 में, और उन्होंने इसको सेल एक उन्होंने लिटिल कंपार्टमेंट के नाम से इसको दिया, जिसको बाद में सेल कहा गया. ठीक है, इसके बाद देखिए ये लिटिल कंपार्टमेंट कैसे है ना. ये देखिए एक ओनियन पील है, सेल ऑफ एन ओनियन, यू कैन सी हियर प्लांट पील. यहाँ देखें कि स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली सेल का बहुत सारे सेल मिल करके कोई बॉडी का निर्माण होता है. तो यहाँ भी आप देखें कि बहुत सारे सेल मिल करके ये पील में देखा गया है माइक्रोस्कोप के माध्यम से. ये जो भी ब्लॉक बना हुआ है आप देखें, ये जो भी ब्लॉक बना हुआ है ये सब एक पर्टिकुलर सेल है. देखिए यहाँ है ना. और ये बीच में जो डॉट आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस है. आप देखिए यहाँ ये क्या है, न्यूक्लियस है. आप यहाँ देखें जब इसमें कोई आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है सेल में, देखिए ये यहाँ आप देखिए साफ साफ देख सकते हैं कि ये सारे कंपार्टमेंट हैं, है ना. और हर कंपार्टमेंट जो है एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है. किससे सेपरेट है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा हर सेल एक दूसरे से सेपरेट है, दिखाई दे रहा है. और ये जो दिया हुआ है बीच में एक राउंड सा फिगर देखिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं. ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. और हम लोग ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ दी जो सेल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड आप देखेंगे ये सब साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म क्या है आपने 8th क्लास में पढ़ा है, यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे क्या है साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए देयर आर डिफरेंट सेल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. यू कैन सी in this slide various cell in human body. Okay, this is blood cell. Okay, this is bone cell, muscle cell, ovum, you know what is ovum, it egg cell. एंड ये फैट सेल है, ये स्पर्म सेल है, ये न्यूरॉन सेल है ना. तो सबका न्यूरॉन यानी जो नर्वस सेल जिसको हम लोग बोलते हैं,
उसका नाम है ये न्यूरॉन सेल है। ये सब देखने में सब एक दूसरे से डिफरेंट शेप एंड साइज में है। एंड दीज ऑल आर परफॉर्म देयर यूनिक, दे ऑल परफॉर्म देयर ओन एक्टिविटी। ओके, तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इन सब को नोट डाउन कर सकते हैं। टाइप ऑफ सेल, सभी सेल का अलग अलग नाम भी है। जैसे यहाँ देखें कि नर्वस जो सेल है उसका क्या नाम है, न्यूरॉन सेल है ना। मसल सेल का भी है, बोन सेल का भी नाम होता है। इसको हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ देखें टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। तो वी ऑल्सो already study in class 8 there are broadly mainly two types of organism on the basis of cell, unicellular organism and multicellular organism, है ना। मैं ये समझूंगा कि आपको 8th क्लास में पहले ही आपको बताया जा चुका है। आपको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। इट इज़, तो आइए देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपको जैसे पता ही चलता है कि यूनिसेलुलर यानी यूनिसेलुलर, यूनिक यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, है ना। इट इज़ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ऑल फंक्शन परफॉर्म बाय सिंगल सेल एंड इट्स लाइफ स्पेन इज शॉर्ट। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनका लाइफ स्पेन जो है काफ़ी छोटा होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, etc. These all are unicellular organism. Okay, and second you can say multicellular organism. It consists of large number of cells. Different cells perform the different function and its life span is long, है ना। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो आयु होती है यूनिसेलुलर से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल ह्यूमन, ट्री, एनिमल, etc. दीज आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये ह्यूमन है, ट्री है, एनिमल हैं, ये सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ये एक से अधिक सेल से मिल करके बने हुए हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, जैसे अब तो हमने डिस्कस किया कि ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, हमने ये डिस्कस किया कि जो सेल हैं, है ना, जो ह्यूमन बॉडी है वो सेल से बना है। तो हम लोग सेल पढ़ेंगे कि सेल कैसे बना है। ठीक है, बेसिकली ये आपका चैप्टर ही सेल है और सेल के बारे में पढ़ना है कि सेल कैसे डिजाइन हुआ है, कैसे बना है, ये कौन कौन सा फंक्शन करता है सेल, सेल का इम्पोर्टेंस क्या है बॉडी के लिए। ये सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस स्लाइड में देखें, व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ, है ना। तो एवरी सिंगल सेल डू बेसिक फंक्शन। सभी जो प्रत्येक जो सिंगल सेल होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं। जैसे क्या फंक्शन करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस, है ना, गैसों का एक्सचेंज करते हैं, डाइजेशन का फंक्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करते हैं, एक्सेट्रा, है ना। तो ईच एंड एवरी सेल परफॉर्म द बेसिक फंक्शन, ओके, like exchange of gases, digestion, absorption, etc. There are main component of cell, you can see here 3 main component of cell. क्या है 3 मेन कंपोनेंट, आपको पता है पहले से भी कि एक क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा क्या है, न्यूक्लियस है, तीसरा क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, आप यहाँ देखिए फिगर में कि ये जो सेल है इसका जो आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या है, ये जो सेल के अंदर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने वाले हैं।
न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। थर्ड नंबर यू कैन सी साइटोप्लाज्म, है ना। तो साइटोप्लाज्म ये जो पोर्शन है ना, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बाद देखते हैं ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, फ्लूइड टाइप होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। ओके, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। आखिर सेल मेम्ब्रेन है क्या, इसका क्या फंक्शन है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए यही तो सेल है। मैंने क्या कहा था कि ये जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल है, ये ऊपर जो देख रहे हैं, यही क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इसको प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या फंक्शन है, क्या है सेल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखें, इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल which separates the cytoplasm from surrounding, है कि नहीं। ये सेल के बाउंड्री है ना, जो दूसरे सेल से इसको सेपरेट करता है। ठीक है, प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। पहले भी आपने देखा कि साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो प्रोटीन्स एंड लिपिड से बना हुआ है। अब आप कहेंगे प्रोटीन समझ में आ रहा है, लिपिड क्या है वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज सेलेक्टिवली प्रीमिएबल इन नेचर। नेचर में जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेलेक्टिवली प्रीमिएबल होता है। सेलेक्टिवली प्रीमिएबल मीन्स क्या होता है, सेलेक्टिवली प्रीमिएबल मीन्स ये सेल के आउटसाइड जो सब्सटेंस होते हैं उनमें कुछ सब्सटेंस को अंदर जाना अलाउ करता है ना, और कुछ को अंदर से बाहर आना अलाउ करता है, और कुछ को अंदर जाने नहीं देता है। ठीक है, इट मीन्स इज सेलेक्टिवली प्रीमिएबल है। सभी सब्सटेंस जो आउटसाइड सेल के है उसको अंदर जाना अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली प्रीमिएबल इन नेचर ना। इट अलाउ सम मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, दैट्स व्हाई इट इज selectively permeable in nature. Okay, next topic you can see, it is flexible and can be folded, broken, okay, and reunited. Okay, so this is called cell membrane. So we are discuss what is cell membrane in this slide, and आगे बढ़ें तो देखेंगे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो ये सेल मेम्ब्रेन है, हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था कि कुछ सिलेक्टिवली प्रीमिएबल इन नेचर होता है, कुछ जो सब्सटेंस है उसको इन और आउट, है ना, परमिशन ये देता है आने और जाने का। तो इसमें किस प्रकार के सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, इनसाइड, है ना, और आउटसाइड, ये हम लोग पढ़ेंगे। देखिए किस प्रकार के मूवमेंट होता है। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ओके, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ओके, तो डिफ्यूजन, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मीन्स it is the spontaneous movement of a substance from high concentration region to low concentration region. Okay, like oxygen
carbon dioxide can move across the cell membrane. It means, in other word, we can say the movement of gases inside or outside of the cell is called diffusion. Okay, students? So, it is very simple to understand diffusion. Simply you can say the movement of gases inside or outside the cell is called diffusion. Okay. Now osmosis. Osmosis, the movement of water molecule through plasma membrane called osmosis. Okay. You understand or not? It means, in another word, we can say the movement of water molecules inside or outside the cell is called osmosis. So you can see the differences between diffusion एंड ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन में किस चीज़ के मूवमेंट होती है? गैस का मूवमेंट होता है इनसाइड और आउटसाइड. एंड ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है? मूवमेंट होता है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल. तो ये बेसिकली डिफरेंस है. बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, क्योंकि ये दोनों तो मूवमेंट ही है. तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं डिफरेंस. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस समझ सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं हम. आगे देखें कि ये जो मूवमेंट है इनसाइड और आउटसाइड सेल है ना, तो क्या होता है ना. व्हाट हैपन व्हेन द सेल पुट इन वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट. मान लीजिए शुगर और साल्ट का कोई वाटर सॉल्यूशन है, तो यहाँ सॉल्यूशन भी देखिए. सॉल्यूशन भी देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन यू कैन सी हियर. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना. देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन. इफ वी पुट द सेल in these 3 types of solution, what will be the result? आइए देखते हैं क्या रिजल्ट होगा. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? यहाँ देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस देन इनसाइड द सेल. ये फर्स्ट फिगर को आप देखें, कह रहा है कि जो ऐसे सॉल्यूशन है ना, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सेल के इनसाइड जो वाटर है मॉलिक्यूल वो कम है, और सेल के आउटसाइड जो है ना, सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल लेस है ना, आउटसाइड कम है और इनसाइड जो वाटर मॉलिक्यूल है अधिक है. तो हमने क्या पढ़ा है कि मूवमेंट कैसे होता है? हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन. तो सेल के इनसाइड जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अधिक है और बाहर क्या है? कम है. तो अंदर से वाटर कहाँ निकलेगा? मूव करेगा आउटसाइड द सेल. तो ड्यू टू दिस सेल लूज वाटर एंड श्रिंक. तो इससे क्या होगा कि सेल के अंदर का वाटर बाहर चला जाएगा और सेल श्रिंक कर जाएगा. ठीक है. दूसरा टाइप के सॉल्यूशन देखें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इसमें क्या होता है? इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल इक्वल होता है ना. इनसाइड भी वाटर लेवल इक्वल होता है मॉलिक्यूल एंड आउटसाइड भी मॉलिक्यूल इक्वल होता है. इससे ना अंदर का पानी जितना बाहर निकलेगा सेल में उतना ही बाहर से अंदर भी जाएगा. सो इससे क्या होगा? ड्यू टू दिस सेल गेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज लॉस. तो जितना सेल वाटर लॉस करता है उतना गेन भी करता है. तो सेल जो है उसकी जो पोजीशन है ज्यों की त्यों बना रहता है. ठीक है. एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड द सेल. यहाँ जो आउटसाइड जो सेल है, सेल के आउटसाइड
जो वाटर का लेवल है, मॉलिक्यूल है, वो ज़्यादा होता है और सेल के अंदर क्या होता है, कम होता है, तो बाहर से वाटर कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि बाहर से अंदर जाएगा, अंदर से बाहर उतना निकलेगा नहीं, तो क्या होगा, सेल जो है फूल जाएगा, है ना, सेल फूल जाएगा। तो क्या होगा, यू कैन सी ड्यू टू दिस सेल गेन वाटर, सेल स्वेल अप एंड मे बी ब्रस्ट, सेल ब्रस्ट भी कर सकता है इससे। तो ये दीज 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, इसको एक्टिविटी में हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यू कैन सी हियर। एक जो अभी हम लोगों ने पीछे डिफाइन किया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है सेल है ना, सेल है। तो सेल के जो बाहर है ये एक मान लीजिए टब है ना, एक ये ग्लास का टब है देखिए, और इसके अंदर ये सेल डाल दिया गया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो सेल के अंदर जो देखिए वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या है, बाहर से अधिक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेल के अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलेगा, है ना। कब तक निकलेगा, जब तक कि अंदर और बाहर का लेवल क्या हो, इक्वल नहीं हो जाए, ये क्या नहीं बन जाए, आइसोटोनिक नहीं बन जाए, तब तक अंदर से जो सेल का मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता रहेगा। इसका रीज़न आपको पता है। तो क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। ये देखिए आइसोटोनिक में देखिए कि आइसोटोनिक में जितना वाटर मॉलिक्यूल अंदर है उतना ही बाहर भी है। तो जितना आउटसाइड से इनसाइड वाटर मॉलिक्यूल जाएगा उतना ही इक्वल अमाउंट में इनसाइड से आउटसाइड भी जाएगा। तो यहाँ सेल की जो पोजीशन होगी, सेल वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। हाइपोटोनिक में हमने क्या पढ़ा कि इनसाइड जो कंसंट्रेशन रीजन लो होता है और आउटसाइड सेल के कंसंट्रेशन रीजन जो होता है हाई होता है। तो बाहर से जो वाटर मॉलिक्यूल अंदर प्रवेश करेगा, है ना, इससे क्या होगा कि सेल स्वेल अप हो जाएगा, है ना, और रिजल्टेड में द सेल में बी ब्रस्ट। ओके, तो थ्रू दिस diagram or activity you can understand these 3 types of solution and their effect on the cell. Okay. Now let me move. You can see the next topic is cell wall. Okay, cell wall you can see here. What do you mean by cell wall, है ना, ये प्लांट सेल को सेल वाल बोलते हैं बेसिकली, है ना। तो ये सेल वाल जो होते हैं इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल होते हैं। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं ये 3 लेयर दिखा रहा है ना। तो ये आउटर मोस्ट जो लेयर है ये जो दिख रहा है आपको ये सेल वाल है, और हर सेल वाल जो हर सेल का सेल वाल एक दूसरे से ज्वाइंट टुगेदर होता है ना, ये ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, कह रहा है कि जो सेल वाल होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तो इससे आप डिफरेंस भी आपको पता चल रहा है। इट मीन्स कि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है, प्लांट सेल में सेल वाल होता है। तो आप आसानी से एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस भी समझ पाएंगे। एंड इट इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जो प्लांट का जो सेल वाल होता है बेसिकली वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये प्लांट के जो सेल है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज से बना होता है। अब आपको माइंड में हो रहा होगा कि सेलुलोज क्या है सर, इसको बताएं, हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। सेल वॉल ऑफ 2 सेल्स आर ज्वाइंड बाय ए लेयर कॉल्ड लेमेले, ठीक है। यहाँ देखें, आप देख सकते हैं कि
ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। तीनों सेल जो है एक दूसरे से ज्वाइंट है, और जिस लिक्विड से ये ज्वाइंट है ना, जिस लेयर से, यहाँ देखिए एक येलो इस अंदर देखिए जिससे ये जोड़ा गया है, ये गम है ना, जैसे हम कागज़ साटते हैं गम से, वैसे ये जो जिस लिक्विड से ये जुड़ा हुआ है ये सेल आपस में, उसको हम लोग लैमेले कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल समझ में आया? आगे बढ़िए, देखिए फंक्शन ऑफ सेल वॉल, है ना, सेल वॉल क्या है और इसके फंक्शन क्या है। सेल वॉल हमने समझा कि सेल वॉल क्या है, इसके फंक्शन क्या क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा कि सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है ना। तो देखिए हमने पढ़ा है क्या कि इट प्रोवाइड्स डिफिनिट शेप टू दी सेल, सेल को यह एक डिफिनिट शेप देता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू दी सेल, सेल को यह मजबूती प्रदान करता है। इट इज़ परमिएबल एंड अलाउ सब्सटेंसेज ऑफ डिफरेंट साइज, है ना, ये डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंसेज होते हैं ये भी परमिएबल होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, तो ये क्या है, सेल वॉल का फंक्शन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को स्टडी किया। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या था सेल का, देखिए न्यूक्लियस है ना, एंड इट इज द वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल स्टूडेंट्स, एंड प्लीज स्टडी वॉच दिस वीडियो केयरफुली, है ना, एंड नोट these all topic, है ना, in your copy. So first topic you can say nucleus, headquarter of the cell, हम लोग न्यूक्लियस को बोलते हैं ये क्या है, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। इट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी यानी सेल के अंदर जो एक्टिविटी होता है उसको न्यूक्लियस क्या करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है ना। इन यूकैरियोटिक सेल ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, है ना। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वेल डिजाइन और डिफाइंड शेप में होता है। इसमें इस न्यूक्लियस का एक मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी है पहले, तो इसलिए इसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जबकि वाइल इन प्रोकैरियोटिक सेल ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, प्रोकैरियोटिक में यही मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है उसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, यानी जो न्यूक्लियस होता है वो वेल शेप नहीं होता है। इट्स ओके। आगे देखें, इट हैज़ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना, न्यूक्लियस का डबल लेयर ना कवरिंग होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है वो डबल लेयरिंग होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके बच्चों, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स which regulate the movement of materials in or out of nucleus. ओके, तो ये न्यूक्लियस है। आगे देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कंटेन न्यूक्लियोलस, इनसाइड, है ना, ये एक है, इसको बताएंगे न्यूक्लियोलस क्या है। ठीक है ना, क्रोमोजोम्स एंड क्रोमोटिन मटेरियल, है ना। क्रोमोटिन मटेरियल क्या है ना, आपको इसमें हर टर्म को मैंने डिफाइन करने का प्रयास किया है।
क्रोमोटीन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए, है ना, एंड प्रोटीन। इसको हम लोग क्रोमोटीन मटेरियल कहते हैं। डीएनए और प्रोटीन को क्रोमोटीन मटेरियल कहा गया है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म यू कैन सी हियर, है ना, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म है। और थर्ड पॉइंट देखें, क्रोमोसोम्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो these all topic explain the nucleus. Okay, I hope you understood. Okay, now जो हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ सेल, तो ब्रॉडली टू टाइप ऑफ सेल, प्रोक्रियोटिक सेल एंड यूक्रियोटिक सेल, आपको पता है पहले से भी। तो प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक में डिफरेंस भी पूछता है, तो डिफरेंसेज आपको पता है ना। प्रोक्रियोटिक सेल जो होता है वेरी माइन्यूट इन साइज, न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है प्रोक्रियोटिक में, है ना। जैसे एग्जाम्पल प्रोक्रियोटिक सेल का क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, यूक्रियोटिक सेल देखिए लार्ज इन साइज होता है। ओके, nucleus surrounded by nuclear membrane, more than one chromosomes are present in eukaryotic cell. Example, amoeba, human, animal, plant, etc. are eukaryotic cell. ओके बच्चों, तो आगे बढ़ें। Now the third topic, third part of the cell, this is cytoplasm. ओके, साइटोप्लाज्म। तो देखें जो साइटोप्लाज्म होता है क्या कहता है, द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच द अदर ऑर्गेनेल्स फ्लोट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन इनसाइड जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है इनसाइड द सेल, बेसिकली नोन एज साइटोप्लाज्म। ओके, सो दिस इज you can see here cytosol. Cytosol, the aqueous component of cytoplasm जो होता है उसको cytosol कहा जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है ये देखें, these are the internal organs of the cell responsible for carrying out specific jobs to keep the cell alive, है ना। तो जो अब साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो भी ऑर्गेनेल होते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वन बाय वन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल इनसाइड द सेल। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज ऑर्गेनेल्स इन दिस वीडियो। ओके, okay, now cell organelle you can see here. Okay, what do you mean by cell organelle? बच्चों आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है सेल, उसमें आपने हमसे पढ़ा सेल, हमने जो कुछ भी हमने वहाँ डिस्कस किया आप लोगों के साथ, आई होप आप उसको समझते होंगे। अब उससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डीपली 9th क्लास में सेल ऑर्गेनेल के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। ओके, तो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डिफिनिट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स हियर। फर्स्ट इज इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसको ईआर बोलते हैं, सेकेंड गोल्गी apparatus, third is lysosomes, fourth mitochondria, fifth plastid, sixth vacuoles, 7 ribosome, है ना, 7 is राइबोसोम। ठीक है, तो
इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन सभी ऑर्गेनेल्स के बारे में। यहाँ देखें, यहाँ कुछ फिगर है ना। ये देखिए प्लांट सेल है। कुछ हम जो अभी आपने ऑर्गेनेल हम लोगों ने देखा है उसका पोजीशन देखते हैं, देखने में कैसा लगता है। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, गोल्गी एपरेटस है। ये देखिए गोल्गी एपरेटस है। ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये साइटोप्लाज्म है, आपको पता है लाइजोसोम्स है। ये न्यूक्लियस है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। ये सेल वाल है। ठीक है, राइबोसोम आप देख सकते हैं, ये राइबोसोम है। तो ये एक प्लांट का सेल है और ये क्या है, लेबल किया हुआ है, लेबल डायग्राम है। तो इस लेबल डायग्राम के ये यहाँ देखिए वैक्यूल है ना। ये एनिमल सेल में बहुत ही मतलब कम पाया जाता है, नहीं के बराबर, लेकिन प्लांट सेल में ये काफ़ी बड़ा होता है वैक्यूल्स। एनिमल सेल में भी होता है लेकिन प्लांट में ये काफ़ी इनलार्ज होता है। ठीक है, तो आगे देखें, एनिमल सेल का लेबल डायग्राम देखें। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये गोल्गी एपरेटस देखिए, इसको आप देख सकते हैं ना, इसका शेप एंड साइज देख सकते हैं। ये राइबोसोम है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये लाइजोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, देखिए साइटोप्लाज्म है। तो ये एनिमल सेल है। ठीक है, इन सभी ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्या था, ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या है ये, आइए देखते हैं क्या है। इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कह रहा है सिंपली कि ये एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। इट मीन्स ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। ओके, तो ईआर इज ऑफ टू टाइप। जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है ये भी दो प्रकार के होता है। एक होता है एसीआर, एक होता है आरईआर। ठीक है, एसीआर मतलब क्या, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंड आरईआर मतलब क्या, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हम लोग फिगर के साथ इसको स्टडी करेंगे, एसीआर और आरईआर को। ठीक है, तो इट मेड ऑफ ट्यूबल्स है ना। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स है ना। स्टीरॉयड, लिपिड एंड राइबोसोम आर एब्सेंट होता है। राइबोसोम ईआर में नहीं पाया जाता है लेकिन आरईआर में पाया जाता है, क्योंकि राइबोसोम जो है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन एंड कंटेन राइबोसोम है ना। यहाँ प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग होता है इसलिए यहाँ राइबोसोम होता है। तो ये ACR और RER, देर आर टू टाइप्स ऑफ ER है ना। ER डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ACR एंड RER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके, तो देखें फंक्शन क्या है ER का, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का आखिर सेल के अंदर क्या फंक्शन करता है। ये यू कैन सी हियर, ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बीच में ये मटेरियल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए स्पेस भी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन सिंथेसाइज ऑफ फैट्स है ना, स्टेरॉइड्स एंड cholesterol etc. Okay, and it help in detoxification of poisonous product। जैसे मान लीजिए कि सेल के आउटसाइड या इनसाइड तो सब्सटेंसेज
को क्या करता है, मेम्ब्रेन अलाउ करता है। सपोज दैट कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या होता है, इनसाइड आ जाता है, तो ये उसको क्या करता है, ख़त्म कर देता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है पॉइजनस प्रोडक्ट को। ठीक है। सम ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज मेम्ब्रेन biogenesis. Protein also sent to various places in cell depending on need. ओके तो ये जो इस प्रोसेस को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने इस स्लाइड में क्या देखा, फंक्शन ऑफ ईआर। ईआर का क्या फंक्शन है। ठीक है बच्चों, तो देखें दूसरा ऑर्गेनेल क्या है, गोल्गी एपरेटस। ठीक है। तो इट इज ए सिस्टम ऑफ ट्यूबल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड vessels and arranged parallel to each other in a stacks called cisterns. ओके अब सिस्टर्स क्या है ये आगे हम फिगर में आपको कंफर्म कर देंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, ये इसको फिगर में हम आपको कंफर्म कर देंगे। फंक्शन गोल्गी एपरेटस का क्या है, देखिए लिपिड्स एंड प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इन ईआर आर पैक्ड, है ना, एट गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यानी जो कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर ये सब सिंथेसाइज और बनता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड दी सेल, सेल में इनसाइड और आउटसाइड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लेमेली के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। लेमेली हमने बताया था क्या है। ठीक है, तो गोल्गी एपरेटर्स का ये फंक्शन है। अब यहाँ देखिए, आपको मैंने कहा था कि हम लोग देखेंगे क्या है गोल्गी एपरेटस। ये देखिए, ये ट्यूब लाइक ये स्ट्रक्चर है ना, ये सब इसमें मैन्युफैक्चर होता है। ये देखिए, ये जो ट्यूबल्स है, ये आउटसाइड में ये जो दिख रहा है ये सब, ठीक है, ट्यूबल्स ये बनता है। ठीक है, बनता है और ये एक डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के फॉर्म में ये काम करता है। यहाँ देखिए राइबोसोम देख रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस में जो भी ये ईआर ये देख रहे हैं, ईआर के ऊपर ये जो वाइट जो राउंड शेप में देख रहे हैं ये, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, राइबोसोम। ठीक है, इसी को राइबोसोम बोलते हैं। ये सब वेसल्स है। ठीक है, इसी को सिस्टर्न्स कहा जाता है। ये जो गैप है ना ट्यूब लाइक, है ना, बहुत सारे देखिए सब में क्या है, ट्यूब लाइक गैप है, ये सब इसी को सिस्टर्न, ये इसको सिस्टर्न्स कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें लाइजोसोम्स, इसको सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग पढ़ेंगे क्यों इसको सुसाइड बैग कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी है आपके लिए। ठीक है, तो दीज आर टीनी लाइक ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम लाइजोसोम। दीज आर बाउंडेड बाय ये सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा ये बाउंडेड भी होता है। फंक्शन इसका क्या है, द मेन फंक्शन इज डाइजेशन, सेल के अंदर जो डाइजेशन का काम करता है। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट जो होता है उसको डिस्पोजल का भी काम करता है। हेल्प इन डाइजेशन फॉरेन एंड सेल मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट देखें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी ऑर्गेनेल है, यहाँ फिगर दिया हुआ है देखिए।
It is a rod-shaped structure in cytoplasm. It is only present in यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंसेज आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो आप समझ पाएंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंसेज, एनिमल्स एंड प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेज है। तो इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वेयर आउटर मेम्ब्रेन हैज स्पेसिफिक प्रोटीन्स एंड इनर मेम्ब्रेन इज folded inside to form chamber called cyst, ओके क्रिस्टी। तो इसको आप देख सकते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसी को डीएनए, ये डीएनए है कहा जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये सब क्या है, डीएनए है। और ये जो स्पॉट दिख रहा है आपको गोल, है ना, दाल के समान, ये देखिए दाने के समान, यही राइबोसोम है। और ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये इसको क्या कहते हैं, देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इट इज ए रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म में, ये आपने पीछे देखा था, ठीक है। इट इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, है ना, डबल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन होता है ना, हैज स्पेसिफिक प्रोटीन होता है इसमें। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से आगे, तो देखिए इट ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल और स्टोरेज बैटरी भी के नाम से भी माइटोकॉन्ड्रिया जाना जाता है, ठीक है ना। फंक्शन इसके क्या होते हैं कि its main function is to produce and store the energy, that's why it is known as powerhouse of the cell, you know, in the form of ATP। ATP क्या है बच्चों, ATP देखिए, जो सेल जो एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है, वो ATP के एक केमिकल फॉर्म में स्टोर करता है, जिसको हम लोग ATP कहते हैं, ठीक है। तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है, एक केमिकल है, इसके फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। इट हैव देयर ओन डीएनए, इसका अपना डीएनए होता है, एंड राइबोसोम्स, ओके। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को आपने समझा और जाना। उसके बाद देखिए प्लास्टिड। प्लास्टिड जैसे कि आपको पता है कि these are present only in plant cell, it have their own DNA। 3 types of plastids आपने पहले भी पढ़ा है ना, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या है, कलर वाइट फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, रेड और ब्राउन कलर का होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर होता है, फाउंड इन द एरियल पार्ट्स, यानी लीफ वगैरह में पाया जाता है, लीव्स में, ओके। तो ये तीनों जो प्लास्टिड्स हैं, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट की वजह से देखते हैं सभी जो प्लांट्स होते हैं उसके पत्ते ग्रीन ग्रीन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का अपना रोल है, आपको पता है, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड सिंथेसाइज करता है, तो इस क्लोरोप्लास्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल है। बिना क्लोरोप्लास्ट के प्लांट अपना भोजन नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो ये तीनों का अपना अलग अलग रोल है सेल के अंदर, ठीक है। तो ये हमने प्लास्टिड देखा, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्लास्टिड का फंक्शन क्या है। देखिए क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। क्लोरोप्लास्ट जैसे आपको पता है, इसी को क्रोमोप्लास्ट भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है, इट इज स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स, ओके।
तो ये देखिए प्लास्टिड और ये प्लांट सेल में पाया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए वैक्यूल्स, ये भी क्या है, ऑर्गेनेल्स है ना। आपको पता है ना कि हम लोग ऑर्गेनेल से स्टडी कर रहे हैं इनसाइड द सेल। तो वैक्यूल्स देखें, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन्स इन द साइटोप्लाज्म containing water, amino acids, sugar, various organic acid and some proteins also. Okay. Vacuoles are small sized in animal cell while plant cell have very large vacuoles. मैंने बताया था फिगर में आपको, ठीक है। In single celled like amoeba, vacuoles contain the food item. फंक्शन इसके क्या है कि स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर जो होते हैं इसके माध्यम से बाहर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए, हमने कहा था राइबोसोम को हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या है राइबोसोम। इट इज़ ए माइन्यूट पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए, डीएनए, आरएनए, हम लोग पहले टर्म को मैं बोला था कि हम लोग देखेंगे। तो आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। राइबोसोम आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज होता है राइबोसोम में, एंड ऑल्सो द प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड टू इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यहाँ से इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को प्रोटीन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। आपने राइबोसोम देखा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने सेल के बहुत सारी पार्ट को डिस्कस करने का प्रयास किया, ठीक है। आगे हम देखेंगे और भी कुछ चीज़ें, ठीक है ना। तो जो हमने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर उसके बेसिस पे देखिए कुछ क्वेश्चन है। वाई द वायरस do not show characteristics of life until they enter in living body. This is answer. Why the lysosome are called suicide bag, है ना, यह आंसर भी है ना। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, यू कैन सी हियर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल से मैंने यहाँ लिया है आपके लिए, ठीक है। ये 1 by 1 आप देख सकते हैं। डिफरेंसेज हमने पढ़ा है इस चैप्टर को डिस्कस करते समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ लिविंग वर्ल्ड में क्या है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है ये दुनिया में सबसे लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। ये देखिए आंसर है, यू कैन कॉपी इट, ओके। ये भी क्वेश्चन देखिए, नेम दीज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं ये राइबोसोम्स होते हैं। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो क्या है, न्यूक्लियस है। प्लास्टिड दैट स्टोर फूड, ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड दैट प्रिपेयर फूड, क्लोरोप्लास्ट, ओके। नाउ एक और क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ टिपिकल प्रोक्रियोटिक सेल। इस प्रकार से ये तो मैंने लिया है, बना बनाया फ़ोटो है, आप इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं अपने कॉपी पे, ठीक है। तो ये रहा आपका चैप्टर। यहाँ आप प्रोक्रियोटिक सेल एंड यूक्रियोटिक सेल में डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है ना। प्रोक्रियोटिक जो सेल होता है ये स्मॉल इन साइज होता है और यूक्रियोटिक लार्ज इन साइज होता है। तो यहाँ हमने लिस्ट किया है डिफरेंसेज, यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड वेरी इजीली, ओके। डिस्कवरी ऑफ सेल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। देखिए ये रॉबर्ट हुक के बाद में सेल को एक और साइंटिस्ट थे, एटन वॉन लेवेन हुक, इन्होंने एक डेवलप
माइक्रोस्कोप बनाया, जिससे इन्होंने सेल के इनसाइड भी इन्होंने देखने का प्रयास किया। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप विच वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लेवेनहुक। ओके, तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि क्या है। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मैग्नीफाई थिंग्स। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोप है। ठीक है ना, ये माइक्रोन माइक्रोस्कोप है। ओके, सेल थ्योरी में देखेंगे, हमने कहा था कि देखें कि इट वाज गिवन बाय शेल्डन एंड सेचवन। अकॉर्डिंग टू इट, सेल इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको किसने कहा? आर वर्च्यू ने कहा। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल, से सबकी लाइफ बिल्डिंग होना स्टार्ट होता है। ठीक है, सेल शेप साइज, ये भी हमने पढ़ा है। सेल शेप एंड साइज इस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो हम लोग फिर इस चैप्टर में आगे यदि कुछ छूटा होगा उसके लिए आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपके क्वेश्चन के लिए हम फिर से कुछ एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे आपको कैसा लगा। ठीक है, ताकि हम फिर से आपके लिए और अच्छे तरीक़ा से आपको टॉपिक ला सकें। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी दूसरे चैप्टर, या यदि इसी चैप्टर में कोई आपको कोई पॉइंट नहीं छूट गया हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके।